Okay, we were discussing about friction. Okay, uh, let us suppose this is the ground and this is the block, and the block surface, the surface of the block and the surface of the ground, they have some friction. When the object will move in any particular direction, the frictional force will oppose the relative motion of the block and the ground. Means the block will continuously decrease its velocity due to its friction. Okay, means if we apply a force, then will be a re- resistive force in opposite direction, means opposite to the motion. There will be a resistive force that is called friction. If we apply, let us suppose this block will only move when we apply 10 Newton force. Before that, the block will not move. If we apply 10 Newton, at least 10 Newton force, the block will move. Otherwise, it will not move. Means, let us suppose we apply a force of 1 Newton, the frictional force will be 1 Newton. Because the net force is 0, the block will not move until and unless we apply greater than 10 Newton force. Okay, means the block will only move after application of the 10 Newton force. If we apply 1 Newton force, the block is not moving, the block is not accelerating. That means the net force on this block is 0. That means there will be an opposing force equal to the applied force. If we apply 1 Newton, the opposing force will be 1 Newton. If we apply 5 Newton, the opposing force will be 5 Newton. If we apply 10 Newton, the opposing force will be 10 Newton. If we apply 12 Newton, the opposing force will remain 10 Newton. If we apply 15 Newton, the opposing force will be, the frictional force will be 10 Newton. Okay. If we apply 20 Newton, again, the frictional force, or the opposing force will remain 10 Newton. Means this frictional force have limit from 0 Newton. We apply 0 Newton, the resistive force will be 0 Newton. Means there is a maximum limit. There is a maximum limit of resistive force. Maximum limit of resistive force. Maximum limit of resistive force. That maximum limit is called limiting friction. Limit, बस उतना ही उसकी लिमिट, या हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. राइट डाउन हेडिंग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, या इसको एफ मैक्स भी कहते हैं ना, वही मतलब हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. Limiting frictional force. Maximum frictional force is called limiting frictional force. Maximum frictional force is called limiting frictional force. ठीक है. राइट डाउन. देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें, ये एग्जांपल हमने लिया, इस एग्जांपल में बताओगे what is limiting frictional force, what is the value of limiting frictional force. Tell me, each and every student should write what is the value of limiting frictional force in this particular case.
10 Newton, very good. 10 Newton, very good. 10 Newton is the limiting frictional force. 10 Newton is the limiting frictional force in this particular given example. Okay, this is not fixed. This is fixed for this one only, but it is not fixed for all type of questions. Okay, ये जो 10 न्यूटन हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लिया हुआ है, ये हमेशा फिक्स नहीं होता है. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. बस याद रखना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. दैट इज नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल्स. ओके, बात क्लियर हो रही है ना सबको? ये सबके लिए फिक्स नहीं है. इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल. इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर, इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एग्जांपल. जैसा कि आपने देखा हुआ इस एग्जांपल में, 10 न्यूटन हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लिया, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कर सकता है. अगर आप मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अप्लाई करोगे तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन जब मैक्सिमम फोर्स यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हम कब अप्लाई करते हैं, तो जितना अप्लाई करेंगे उतना ही मिलेगा. समझ रहे हो? जितना अप्लाई करेंगे उतना ही मिलेगा, जितना अप्लाई करेंगे उतना ही मिलेगा बैकवर्ड, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा. लेकिन जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक मैक्सिमम 10 न्यूटन लगा सकता था, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर लगा सकता था. इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ब्लॉक में देखेंगे तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा. व्हेन वी अप्लाई 12 न्यूटन, द नेट फोर्स विल बी व्हाट, 12 minus 10, दैट इज 2 न्यूटन. तो इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ नेट फोर्स आ गया. दैट मींस द ब्लॉक विल मूव विद नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन. ओके, तो इस ब्लॉक पे अब नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स कुछ और आ गया, मतलब 2 आ गया. अगर हम 15 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो 15 minus 10 दैट इज 5 न्यूटन. अब ये 5 न्यूटन के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, एंड इन दिस पर्टिकुलर स्टेज इज दिस इज 10 न्यूटन. तो बात को समझना, छोटी छोटी बातें हैं इसमें, इनको आपको समझना है. ठीक है, ओके. राइट डाउन, there are two type of frictional force. There are two type of frictional force. Write down, there are two type of frictional force. Number one, static. Number two, kinetic. Static का मतलब at rest, in the motion. ये रेस्ट पे लगता है स्टैटिक, और काइनेटिक मोशन पे लगता है. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब तक ये स्टैटिक लग रहा हो. जैसे ही ये मोशन में होगा वैसे ये क्या करेगा, काइनेटिक में होगा. हमारी बात, यानी कि बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मींस जब तक ये बॉडी, ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तब तक इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक होगा. और जब ये मोशन में आ जाता है तो उस टाइम पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो काइनेटिक होगा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. फ्रिक्शनल फोर्स दोनों टाइप पे है, बट स्टैटिक और काइनेटिक है ना. क्या डिफरेंस है उसमें बताता हूँ अभी ध्यान से. बस बेसिक डिफरेंस इसका ये है कि द फ्रिक्शन when the object is at rest and when the friction when the object is in motion.
ओके, इसमें कोई लिखवाने वाली बात नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा राइट डाउन द हेडिंग, वेरिएशन ऑफ force of friction. Write down the heading, variation of force of friction. Force of friction. Variation of force of friction with applied force. With applied force. Variation of force of friction with applied force. Variation of force of friction with applied force. ठीक है, ग्राफ बनाना है हमको। ये कैपिटल एफ यानी अप्लाइड लिखूंगा, अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ का मतलब अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। लिख लेना यहाँ पे, सिंपली फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, है ना। जब हम फ्रिक्शनल फोर्स जब हम अप्लाई फोर्स जब हमारा जीरो था तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। अभी यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा, जीरो अप्लाइड फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। एज वी इंक्रीज, जितना हम इसमें बढ़ा रहे होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, उतना ही इसमें जितना हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे होते हैं उतना ही इसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। जितना लगाएंगे उतना ही, मीन्स ये लगेगा, बोलो, स्ट्रेट लाइन एंड दैट एंगल इज एट 45 डिग्री। ध्यान रखना क्योंकि एकदम इक्वल लग रहा है। फिर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है ना, फिर एक टाइम पे आता है मैक्सिमम पहुंच जाता है, यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना जाएगा, मैक्सिमम, है ना, एफ मैक्स, ये मैं एफ मैक्स हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये हमारा ये वाला हमारा आ जाएगा स्टैटिक, और ये वाला जो होगा हमारा काइनेटिक या डायनामिक कह सकते हैं। काइनेटिक, ये स्टैटिक था, इसके बाद मैक्सिमम लगा, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा गया काइनेटिक फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है और वो पूरे मोशन में कांस्टेंट होता है। पूरे मोशन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू, काइनेटिक की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हम 10 न्यूटन के बाद लगा रहे थे लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो बढ़ नहीं रहा था, वो 10 था, है ना। अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट increase, that will remains the constant on the application of the external force or applied force. When we increase the value of capital F, the frictional force will increase, but at maximum value, and after maximum value it will remains the constant. Done? Is it done? Okay. Write down next heading. Laws of limiting friction. Laws of limiting friction. Laws of limiting friction. From experimental studies, देखो एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखना, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल
The limiting frictional force is found. The limiting frictional force is found to obey the following laws. Found. It is obey. पूरा लिख लो फिर से. From experimental studies, the limiting friction is found to obey the following laws. Following laws. बहुत सारे लॉ हैं इसमें, लिख लेना इसमें. नंबर 1, the limiting friction depends on the nature of the surface. The limiting friction depends on the nature of the surface in contact. Nature of the surface in contact. Number 2, the limiting friction acts tangential. The limiting friction acts tangential. यानी सरफेस के टेंजेंट में लगता है. बता दिया था पहले. Number 3, the value of limiting friction. The value of limiting friction is independent of the area of the surface. Number 4, limiting friction is directly proportional to the normal reaction. F max directly proportional to R. यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, वो नॉर्मल रिएक्शन यानी N कह लो या R कह लो, दोनों बातें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. F max इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट R, म्यू, इसको म्यू कहते हैं. तो म्यू इज इक्वल्स टू F max by R. म्यू क्या है? Coefficient of friction. Mu is what? It is coefficient of friction. Coefficient of friction. Mu is what? Mu is the coefficient of friction. याद रखना, ये बना, ये आपको याद रखना. F max is equals to mu R. ये आपको याद रखना. F max equal to mu R. क्या मतलब हुआ इससे? कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी हमको कंडीशन मिल जाएगी, यानी जो हम ब्लॉक के लिए 10 रखे हुए थे,
10 रखा हुआ था, ये यहां से मिल जाए, यानी एफ मैक्स हम म्यू इंटू आर मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, म्यू आर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि इसमें कितना कितना इसकी लिमिटिंग है, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपका निकल जाएगा कि ब्लॉक उतना ही मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, यानी 10। इससे कम अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, मैक्सिमम ज्यादा नहीं लगाएगा, बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। और सिंपल चीज है, कोई बहुत हार्ड नहीं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, है ना। तो ये ग्राउंड है आपका, ये ब्लॉक है ना। दिस इज कैपिटल एफ मीन्स अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज द वेट, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब कि आर और डब्ल्यू क्या होगा, वेट एंड रिएक्शन विल बी सेम, वेट एंड रिएक्शन इज सेम इन दिस केस। इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपका W and R means normal reaction and weight both are equal. Applied force and frictional force. Applied force and frictional force. Depend करता है कि applied force कितना है और frictional force इसकी limiting maximum frictional force कितनी है। तो आपका given है mass of the block, let us suppose 10 kg, G equal to आप 10 kg ले लोगे, mu is equal to आप लिखना given, given mu is equal to 0.1, है ना। इसकी यूनिट नहीं होती है क्योंकि रेशियो है फोर्स। देखो म्यू क्या अभी लिखा, म्यू आपने लिखा एफ मैक्स अपॉन आर, तो यूनिट क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो वेट, वेट के बराबर हो। इसका मतलब वेट क्या है, एक फोर्स है, मींस नॉर्मल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। देख लो ना, वेट इज अ काइंड ऑफ टेंशन, आपने स्ट्रिंग में टेंशन की बात की थी, एज अ इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एंड हियर इट इज नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आर भी फोर्स है, एफ मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स भी फोर्स, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। तो फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन, फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी यूनिटलेस। कोफिशिएंट की कोई यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, इट इज द गिवन, दीज वैल्यू आर गिवन। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉरी, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है ना, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। लिखो, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्मॉल एफ, पहले पे 1, कैपिटल एफ 5 न्यूटन, दूसरे नंबर पे व्हेन कैपिटल है 7 न्यूटन, थर्ड नंबर पे व्हेन एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन। कैलकुलेट ऑल्सो, कैलकुलेट यानी फ्रिक्शनल फोर्स तो निकालना ही है आपको, ऑल्सो कैलकुलेट acceleration in each केस, तीनों केस में acceleration भी निकालना है और आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
पहले केस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट कब चलेगा. गुड, वेरी गुड, क्या बात है. कुछ स्टूडेंट तो काफी ज्यादा फास्ट है, सुपर फास्ट. चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है. ठीक है, मैच करना, कोई बात नहीं. गलत होगी कोई बात नहीं, गलत अगर होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम अटेम्प्ट तो किया आपने. चलो करो, देखो हो रहा है तो अच्छी बात है, कर रहे तो बहुत अच्छी बात है. किसी और का हुआ? देखते देख, सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि कब ये ब्लॉक चलेगा. ठीक है, तो एफ मैक्स हमको निकालना है, यानी हमको कंडीशन पता होना चाहिए कि किस फोर्स के बाद ये चलेगा. एफ मैक्स म्यू इंटू आर होता है, म्यू इंटू डब्ल्यू. इस केस पर्टिकुलर केस में हर जगह आर और डब्ल्यू बराबर नहीं होता है, हर जगह पे आर और डब्ल्यू बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना. इस केस में है आर और डब्ल्यू क्योंकि वर्टिकल में है, इसलिए म्यू इंटू एम इंटू जी वेट होता है. बोलो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू 0.1 एंड m is 10 and g is also 10, that is 10 न्यूटन. वही आ गया केस, यानी ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई, सॉरी 10 न्यूटन से हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तभी ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा. यहाँ तक क्लियर होगी बात सबको? यानी अगर हम 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करेंगे तब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज रुका रहेगा 10 तक. क्लियर है सबको यहाँ तक? अरे आगे मत जाओ ना, कौन रहा है, पहले इतनी बात समझो, इतना बता रहा हूँ. इसके कंडीशन निकल गई. हमने एग्जाम्पल भी 10 का लिया था और ये दूसरा वाला एग्जाम्पल भी 10 का है. तो थ्योरी को मैं समझा रहा था तब भी हमने 10 लिया था, और बाई चांस यहाँ पे एग्जाम्पल में भी 10 आ गया. ठीक है, मतलब 10 न्यूटन के बाद अप्लाई करेंगे तो चलेगा. हम क्या कर रहे हैं पहले केस में एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, जितना अप्लाई करेंगे उतना ही मिलेगा. यानी फर्स्ट केस का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन की बात करूं फर्स्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 5. फ्रिक्शनल फोर्स 5 होगा. आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, नॉट अनम्यूट. हाँ, अप्लाइड फर्स्ट की बात करें अगर, अप्लाइड फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, हम 5 ही अप्लाई करें तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या देगा, 5. क्यों? क्योंकि ये 10 से कम है, इसलिए आप फ्रिक्शनल फोर्स क्या जाएगा, 5. और अप्लाइड फोर्स भी 5 है और फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज नेट फोर्स इज 0, ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. दूसरा केस, F विल बी इक्वल टू व्हाट, बिकॉज जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो 7 न्यूटन, दैट इज लेस देन 10, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, 7 न्यूटन ही होगा और एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बिकॉज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, अप्लाइड फोर्स एंड frictional force both are equal and opposite, means net force on the block is 0, means acceleration will be equal to 0. Okay, third case,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड केस, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 12 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन मतलब क्या हुआ, इट इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो अब फ्रिक्शनल फोर्स तो 10 लगेगा, हमको निकालना क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन, क्योंकि इससे ज्यादा लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो फॉरवर्ड में 12, बैकवर्ड में 10, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट कितना है यहाँ पे 12 माइनस 10 एंड अपॉन मास कितना गिवन था, मास कितना था भूल गया मैं, मास क्या गिवन था बताओगे, 10 kg। 10 केजी, अच्छा हाँ 10 केजी यहाँ दिया हुआ, ठीक। तो अपॉन 10, 10 ये क्या था 2 अपॉन 10 मीन्स 0.2, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप लोग कंजस्टेड हो गए, तो समझ रहे होगे 10 12 minus 10 upon 10, net force upon mass equal to 2 upon 10, that is 0.2 meter per second square. 705070 10 0.2, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट है जो कर ले, कुछ स्टूडेंट है जो कर ली किए भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि राइट ना कर पाए हो, कमेंट ना कर पाए हो, चलो अच्छी बात है। हम बहुत टफ चीज पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, टफ तो है नहीं, लेकिन टफ लोग बना देते हैं, बाकी स्टूडेंट को टफ लगता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे टफ मुझे नहीं लगता कि टफ बहुत ज्यादा है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें। बहुत ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार कहता हूँ मैं, ज्यादा यूज मत करना, थोड़ा सा यूज, एकदम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा यूज करने से दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा यूज करना, बाकी के लिए बचा के रखना आगे के लिए। क्लियर टू ऑल, जहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत है अभी भी किसी को, क्लियर ना, यस यस यस, ओके गुड। अगर इससे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, इसे बता दूंगा। नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके गुड, वेरी गुड। Okay, write down the question. Write down the question. A mass of 200 kilogram. A mass of 200 kilogram is resting on a rough inclined plane. A mass of 200 kilogram is resting on a rough inclined plane.
rough inclined plane is resting on a rough inclined plane of 30 degree with the horizontal. Inclined plane of 30 degree with the horizontal. If the coefficient of friction is 1 by root 3, coefficient of friction लिख देता हूँ यहाँ पे आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में. mu equal to 1 by root 3, sorry, root 3. Coefficient of friction is 1 by root 3. Find the least and greatest force acting parallel to the plane least and greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. To keep the mass in equilibrium. क्वेश्चन को पढ़ो समझो, देखो क्या समझ में आ रहा है इससे. देखो पहले मैं क्वेश्चन समझाया था. तो दो ब्लॉक है, सॉरी एक ब्लॉक है, दो अलग अलग केस बना है. इस ब्लॉक को हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या होगा, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, बोलो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन. और यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये कितना होता है mg cos 30 इधर की तरफ, और इधर की तरफ कितना होता है mg sin 30. इधर cos इधर sin होगा, पहले कर चुके. ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा. तो mg cos 30 और mg sin 30. इधर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है. ये इधर की तरफ डाउन जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ
वो कितना लग रहा है ना। अगर ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो अपने आप रुका रहेगा, उसको रोकने की जरूरत ही नहीं। बोलो, पहले हम क्या करेंगे, एफ मैक्स निकालेंगे, म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर इज व्हाट, एम जी कॉस 30। म्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3 एम दिया इसमें, एम 200 और जी की वैल्यू को भी 10 ले लेते हैं, आसानी रहेगी कैलकुलेशन। जी की वैल्यू 10 एंड कॉस 30 √3/2। √3 से √3 कैंसिल, ये यहाँ से 100 हो जाएगा, यानी 1000 न्यूटन। अब इधर की तरफ फोर्स निकालते हैं हम लोग। एफ मान लो डैश कैलकुलेट करते हैं, एम जी साइन 30, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी कि ये 1000 न्यूटन। क्या मतलब है इसका, उनको फोर्स लगाने की जरूरत है, फोर्स लगाने की जरूरत है तो खुद ही रुका होगा, यानी इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन। और इस पे मैक्सिमम, इसको स्लाइड करने के लिए, इसको मूव करने के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स चाहिए, 1000 न्यूटन, यानी 1000 न्यूटन के बाद ही चलेगा। और इसको टिल्ट करने से इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एम जी साइन 30 इधर की तरफ, समझ। इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ, अब अपने वेट की वजह से जो इधर की तरफ जा रहा है, एक बात समझते होगे ना कि अगर इंक्लाइन पे कोई ब्लॉक रखा जाए, उसको इंक्लिनेशन को बढ़ा दिया जाए तो ब्लॉक स्लाइड कर जाए, तो स्लाइड करने के लिए एंगल को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है, ओके कितना है, भी 1000। इसका मतलब कि हमको इसको प्रिवेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रिवेंटेड है। समझ में आया, 3000 का 3000 आ रहा है, हाँ 3000 का भाई, अमृता पांडे। इस समझ में आई बात नहीं, पहला केस समझ में आया, ठीक है ना, केस तमाम, नो डाउट। क्लियर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो मास इसका वेट तो ऐसे ही लगा, एम जी, दैट इज 30 डिग्री, हेयर एंड हेयर, हेयर, कितना हो रहा है, आ रही है, और दिस इज एम जी कॉस 30, एम जी साइन 30, ओके। बनाओ फिगर, सेकेंड केस, ड्रॉ द फिगर फास्ट, ठीक है कोई बात नहीं।
हो गया। देख, यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसको मैं ऊपर की तरफ खींचता हूँ, मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई लगा सकते हैं, ये चले ना, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे कैपिटल एफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है, इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स नीचे है। इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऊपर खींचने के लिए, लेकिन तब भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस केस में भी मोशन नहीं होना चाहिए। टू प्रिवेंट लिखा है ना देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम, मतलब नो मोशन, मतलब नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का केस हमने पढ़ा था ना, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी F इक्वल टू F प्लस mg साइन थीटा, यानी F नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ऊपर की तरफ F है, नीचे की तरफ ये दोनों है, दोनों आपस में तो बराबर होना चाहिए, दोनों का समेशन करके इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, F इज इक्वल टू F प्लस mg साइन 30। या ऐसे आप लिख सकते हो, जिसको अगर दिक्कत हो रही है तो F को ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, तो F पॉजिटिव है, माइनस F एंड माइनस mg साइन 30 इक्वल टू 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसको पॉजिटिव मानते तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव मानते तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बात वही पड़ेगी, यानी इस F को उधर ले चले जाएंगे, F इक्वल टू F प्लस mg साइन 30, तो यही घूम फिर के आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना। या दोनों को आप दोनों साइड में आपस में बराबर कर देते हैं, वही बात। कैपिटल एफ हमको कैलकुलेट करना है, ये कितना जाएगा, म्यू इंटू आर प्लस एम जी साइन 30। आप म्यू इंटू आर के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, एम जी कॉस 30 और प्लस एम जी साइन 30, है ना। एम जी बाहर ले लो, म्यू कॉस 30 प्लस साइन 30, 10 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 10 नहीं है, ये कितना है, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, mu is 1 by root 3 into cos 30 root 3 by 2 up plus 1 by, this is 1 by 2 plus 1 by 8 is 1, and this is 2000 newton. हाँ 2000, गुड। यानी मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है इसमें, 2000, उससे ज्यादा लगाएंगे तो ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, इससे ज्यादा अगर अप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, जिससे हो जाएगी प्रॉब्लम, है ना। तो इक्विलिब्रियम में रखना है, इस नेट फोर्स 0, या हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट एक्सेलरेट, मींस नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये दोनों चीज समझ में आ जाएगा, आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है, मानता हूँ इस बात को, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम you may leave the class after writing your attendance. After writing your attendance, you may leave the class.
Write your attendance and leave the class.